Spam is today a menace in India. There are $3 billion worth of bank frauds. हमारी फैमिली में तो बहुत लोगों के साथ में हुआ भी है। फाइनली उन्होंने बोला कि रख दो फोन, मैं रात को आके देखूंगा। I think a set of people, technology is already consistently going to be working on that. So it's a developing story and I like this development. Sure, on the flight. By the time he landed and called his dad back, गया पैसा। आपका डॉग अनफॉर्चुनेटली गाड़ी के नीचे आ गया है। तो वो बंदी 4 दिन तक उस लैपटॉप के सामने बैठी हुई है। तो मैं अपना फोन उठाता ही नहीं हूं, छोड़ दिया है मैंने बिकॉज ऑफ अननोन कॉल्स, राइट? थप्पड़ से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन स्पैम कॉल से डर लगता है। One woman in Noida lost 9 crore rupees. A man in UP lost 5 crore rupees. Package scam, delivery scam, house arrest scam. I think this is what has become our life right now. Every day, हर रोज सुबह एक नई headline आती है, and all of it starts from where? Spam, and then leading to scam. बहुत बड़ा दिन है आज, और अगर बहुत बड़ा दिन है, then I have to have incredible people to take this announcement forward, right? So let me do the introduction. Rohan, absolutely and totally stand-up comedian extraordinaire. Neha, financial knowledge dispenser extraordinaire. We've got Faye, who's journalist extraordinaire, and of course the actor that actually मैंने आपको already बता दिया, बहुत praise कर दिया off camera मैंने. So I'm just going to say unbelievable. So I have, of course, I don't know, marketer, actor, whichever one you want to go with right now, but absolutely extraordinary. And of course, my brother and colleague out here, the two techies that are sitting out here, Gaurav. Very very good to have all of you here. I'm waiting कि कोई मेरे लिए भी बोल दे कुछ most extraordinary, कुछ बोल दो, फिर आगे चलते हैं. The inventor of India's most famous dish, Rajiv Makhni, बिल्कुल is here with us today. पनीर, दाल, chicken. I cover all proteins. Okay. But it is a very very interesting day out here today कि ये हम लोग discuss कर रहे हैं वो वाली problem that some people thought. In fact, I think Gaurav and me have discussed this before many times कि शायद इसका कोई solution नहीं आएगा. But today we stand on the threshold कि वो आ रहा है. So I'm going to start off from you, Rohan. Yeah. Let's just find out the horror stories, because there is everybody who is either उनका अपना experience है or someone close to you. It's not some hearsay somewhere. बिल्कुल. Someone that you know personally or you yourself. 100%. Tell me a quick story of what you think has been like. ये क्या हो रहा है? On the flight here, I was talking to somebody, never met them before in my life, और वो बता रहे थे कि literally he was once uncontactable for 45 minutes क्योंकि वो फ्लाइट पे थे. उतने टाइम पे someone called his father and said कि आपके बेटे का ये हो चुका है, हम CBI से फोन कर रहे हैं, उनको अगर छुड़वाना है तो अभी के अभी इतने पैसे देने पड़ेंगे. And his father is like 85-86 years old. So obviously he panicked because other thing, these scams really try to target people who will get easily emotionally triggered, right? And this person told me that his father left the house and drove to 4 separate bank branches, sort of to make sure he could, when he sent money to this person in the 45-minute period this guy was on the flight. By the time he landed and called his dad back, गया पैसा. बिल्कुल. ये जो scams हैं, they are getting more and more sophisticated. यहाँ पे actors हैं, scripts हैं, uniform हैं, sets हैं. They've taken it to a whole new level. नेहा, आप तो financial knowledge देते हो, कभी finance भी दिया है किसी scammer को? मेरे फादर का ट्रक का ही बिजनेस है, तो उनको कॉल आया और उनका मैंने ही नंबर गूगल मैप पर रजिस्टर किया कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है. तो कॉल्स आते हैं उनको रेगुलरली, दिन में आते होंगे 19-20 कॉल्स. तो उनको एक दिन कॉल आया, उन्होंने कहा कि उनको ट्रक चाहिए लखनऊ टू कानपुर के लिए, और बहुत देर उन्होंने भी बार्गेन किया पापा के साथ कि इतने में कर लो, इतने में कर लो. फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक अमाउंट फिक्स हो गया. फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको ना एडवांस भेज देता हूँ, आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होगी. तो जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया तो फर्स्ट टाइम उनके अकाउंट से 30,000 कट गए. अब उनको लगा कि पैसे आए हैं. एग्जैक्टली, वो तो फिर कॉल पे बट उन्होंने कहा कि कम अमाउंट किया है आपने, बात तो 70,000 की हुई थी, तो मैं दोबारा भेज देता हूँ आपको. एंड दोबारा जो वो भेजने वाले थे तो वो उनको लगा, कुछ डाउट तो हुआ उनको, बट उन्होंने फिर कॉल किया कि ऐसे देखना तू डेबिट हुआ है, क्या हुआ है. तो मैंने कहा पापा नहीं, अब मत भेजना आपको. फिर पापा ने उनको गाली वाली दी. बिकॉज मैं खुद फाइनेंस बैकग्राउंड से, मुझे पता है कितने लॉज है, कितने पोर्टल्स है, कितनी जगह आप कॉल करके रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो. सो दे आर मल्टीपल प्रोसेस, राइट. हमने सब फॉलो किया बट हमें कोई रिजल्ट नहीं. बट यू नो एक्चुअली ये है कि
इतनी तादाद में हो रहा है, जो आप किसी को कंप्लेंट कर रहे हो, एक पोर्टल पे जा रहे हो, यू आर वन ऑफ मिलियंस हु आर गेटिंग स्कैम्ड एवरी डे. दैट इज मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम है ये. मनी वोंट स्टे इन दैट अकाउंट. वो तो 2 बारी और 3 बारी ट्रांसफर हो गया. 10,000 कहीं गया, मनी डिसअपीयर्ड बेसिकली. Right, it's moving very very fast. So ये आपका जो I'm sure बहुत personal anecdotes and stories, but साथ में I'm also looking for a different perspective. I'm looking at the journalistic perspective. Personal anecdote, my parents live in Bangalore, senior citizens are retired हैं दोनों. My dad was getting calls in the afternoon and I think this is also strategy क्योंकि सबको मालूम है कि senior citizens दोपहर को सोते हैं. When you call them, they're a little disoriented. You know, it takes them some time to process कि आप क्या बोल रहे हो. He was getting calls from supposed customs officers कि आपके नाम से कोई package है. This is such a common scam. And there was this one time I happened to be in Bangalore and he gave it to me saying, I don't know what to do. It's just really, I'm finding it really stressful. Can you? And वो बार लगातार phone करते हैं. And so I took the call and I answered. And उन्होंने बताया लंबा नाम, ऐसे कस्टम्स ऑफिसर यहाँ दिल्ली से फ़ोन कर रहा हूँ, आपके नाम से एक पैकेज आया. तो मैंने बोला मैं उनकी बेटी हूँ, बताइए क्या चाहिए. नहीं बहुत सीरियस केस है, मुझे ये चाहिए, इनका ये नंबर चाहिए, इनका ये डिटेल चाहिए. तो मैंने बोला कि लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे पैकेज मैं रिफ्यूज़ कर रही हूँ तो लौटा दीजिए. आई डोंट वांट दैट पैकेज. नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप, आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी. मैं बोला देखिए मैं पत्रकार हूँ, मैं कानून समझती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है आप पुलिस में जाके दर्ज करा दीजिए, मैं पुलिस स्टेशन आ जाऊंगी, आप छोड़ दो. तो जैसे नाउ वन आई वाज आल्सो वेस्टिंग हिज टाइम बिकॉज मैं खींचती गई बिकॉज आई वांटेड टू आल्सो फाइंड आउट कि ये कर क्या रहे हैं. जैसे मैं उनके टाइम बर्बाद कर रही थी वो और गुस्सा हो रहे. फाइनली उन्होंने बोला कि रख दो फोन, मैं रात को आके देखूंगा तुम्हें. मतलब it got that bad. And so I sat और मैंने जितने सारे नंबर से फोन आए थे मैंने सारे ब्लॉक किए अपने डैड के फोन से. But there are new numbers called. No, this is आप 10 नंबर करोगे उनके पास 10,000 और हैं. So it's this is a game of actually averages. कि आप 1,000 लोगों को करो, right? उसमें अगर 3 भी फंस जाए, वो 3 are worth, as you said, कुछ 30,000, कुछ 30 lakhs, कुछ 3 करोड़. बहुत अच्छा business है. The ROI on this, Neha, you will understand. The return on investment on this is incredible. I'm sure आपकी बहुत stories हैं, because we were again, like I said, off camera जो बात हो रही थी, something that has either happened with you or someone close to you. तो मेरे एक दोस्त के साथ गुवाहाटी में हुआ, उसको एक तस्वीर भेजी गई कि एक मिलिट्री के एक फैमिली वो वापस जा रही है किसी और शहर पर, उन लोगों ने सामान ख़रीद लिया है तो वो इमीडिएटली बेचना चाहते हैं तस्वीरों के साथ कि ये फ्रिज है, ये है, और वो आज शाम तक चले जाएंगे, आपको अगर लेना है तो बता दीजिए, नहीं तो हम कहीं और चले जाते हैं. तो उसने एकदम रोका एंड इट वाज लाइक टू सरप्राइज हिज वाइफ. और इनफैक्ट ऐसा किया, उसने कहा कि मैं अपनी वाइफ को नहीं बताऊंगा कि आई वांट टू सरप्राइज हर. सी द पॉइंट दैट आई वांटेड टू गेट इज दैट मैं खुद इसमें एक बार मैं क्लिक कर चुका हूँ. जब मेरा लिंक पर जब मुझे बताया गया कि किसी ने मुझे कुछ सामान भेजा है, वो बर्लिन में पकड़ा गया है, तो मतलब मैं तो हाथ पांव ठंडे हो गए दोस्त मेरे. तो मेरे ख्याल से आई थिंक व्हाट इज अमेजिंग व्हिच इज हैपनिंग नाउ स्पेशली विद दिस एंटायर थिंग, इसकी ह्यूमन इंटरफेस में ना हम लोग अगर हो सकता है काफ़ी ठीक ठाक समझदार लोग हैं, हम ही फिसल सकते हैं. जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. इट्स अ बिट लाइक कहते हैं ना आप स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्ट करते हैं तो उनका हर एक कॉल एक इन्वेस्टमेंट, एक 2-3 भी लग जाए काम बन जाए. सो द पॉइंट इज थ्रू AI ये जो बात हो रही है टू स्टॉप इट राइट एट दैट सोर्स बिफोर वी पिक अप द कॉल. बिकॉज पुराने ज़माने में याद है वो जो कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर्स होते थे, वो घर आते थे और कहते थे कि आपका सोना हम साफ करेंगे, आप दीजिए, इसमें ढक दीजिए और इसमें ग्लास में ढककर हम आते हैं 1 घंटे में, फिर खोलिएगा, और तब चले जाते हैं. These are the modern day confidence tricksters जो आपको इतनी बढ़िया तरीके से बताते हैं, कई बार तो आपकी मदद कर रहे होते हैं वो, वो कहते हुए. सो आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि आप इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग जो हमारे या किसी भी देश में हैं, उनकी समझ को आप ट्यूटर नहीं कर सकते कि आप मत डरिए. We'll have to stop it right at the source. You know what happens to me on a daily basis is मुझे 2 फोन से हर रोज एटलीस्ट 4 बार फोन आता है. एक है इंदौर मध्य प्रदेश से, आई हैव एन आईफोन, तो वो लिखा होता है कहाँ से फोन. इंदौर मध्य प्रदेश से 4 फोन, अहमदाबाद गुजरात से 4 फोन. And every time I'm blocking these numbers, next day same location, different number. Calls are about
insurance, car, property, realty. So I don't entertain because I see those vacations anymore. But it's crazy how on a daily basis I get these 8 calls. और I got so frustrated. मैंने डांटा मत करो क्यों मैं बेचा रही हूँ मैं नहीं फोन उठाऊंगी तुम्हारी next day hello again. but that's actually speaking, अगर आपने देखा होगा, the more frustrated you get, the more vulnerable you are. Yeah. तो उनको पता है कि आप बहुत frustrate हो चुके हैं. Next will be an emotional. Yeah, you'll take the wrong decision. Anger and vulnerability both make you take wrong decisions. And one thing is very clear, fear sets in. Yes. क्योंकि देखिए हम एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर हम जानते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या पैकेज आ रहा है, कुछ पता ही नहीं, हम लोग क्या क्या ऑर्डर करते रहते हैं. एंड वी रियली डोंट नो कि इतनी सारी पता नहीं क्या किसी ने घर में कुछ ऑर्डर किया था, क्या हुआ, एंड ऑल द OTPs कीप कमिंग अप. तो उस समय दिमाग काम नहीं करता. So my entire thing is कि we cannot count on anybody either intelligent or so gullible जो उसको ना कह दे, या तो इतना है करता रहे वो तो. मेरे साथ क्या हुआ था, when I'm not home तो वो डिलीवरी एजेंट का फोन आता है, मैम यहाँ खड़े हैं OTP जल्दी दे दीजिए आपका पार्सल है. लाइक आप घंटी मारो तो कोई दरवाजा खोलेगा फिर मैं OTP दूंगी. एंड लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज turned out to be a fraud because nobody gave वो पार्सल. Gaurav, I want to know from you again. I'm sure आपके पास जो स्टोरीज हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट कि आज तक इसका सोल्यूशन क्यों नहीं आया. देयर इज, हम लोग डू नॉट कॉल की लिस्ट पे हम लोग जाते हैं, हम लोग एप्स यूज करते हैं, हम लोग को बताया जाता है कि गूगल, अदर्स, many other different apps are available कि identify हो जाएगा. After that we'll talk about what Airtel has done today and क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की है, लेकिन आज तक क्यों नहीं हो पाया. सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन DND कॉल, DND में आप रजिस्टर करते हो, your hope becomes very high. Yes. And then you ऐसे ही आपने बटन किया कि I don't want them, next call is a spammer. Yes, yes. क्यों नहीं होता. कॉन्फिडेंटली बताते हो कि तुम्हें पता है मैं DND पर हूँ. And he says righteous about it. मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन से फोन कर रहा हूँ, आपने कुछ गलत कर दिया है, पे 5,000 आपका दिया. बताओ क्यों नहीं काम किया? Why is this such a big frustration? Considering the kind of scale that we have, it is pretty much impossible for any app or any kind of crowdsourcing to reach kind of all the touch points. Considering जिस तरीके से the scammers they have bulk of SIM cards, bulk of those burner phones, bulk में जो data होता है. I mean, no matter what you do, sometimes the kind of numbers that you use, they are normal numbers जो आप और हम numbers use करते हैं, वो उसी पे ही. No, Airtel was the right candidate to do something like this. Okay. Otherwise, अगर हम बात करें from the government side of things, from maybe an app developer, I think बड़ा मुश्किल होगा to cover everyone. And then the thing is, let's say I have a solution. How do I make sure the solution is able to reach out to everyone? मैं spread कैसे करूँ उस चीज को? वो बड़ा मुश्किल है. I will tell you a story. So basically, I was sitting with my team and recording a video. और किसी टीम मेंबर के फोन पे मैसेज आता है कि KBC से लॉटरी लग गई है, this and there's this link of a short code for WhatsApp basically. You open that link and you end up in that chat. तो वहाँ पे एक फोटो आता है सामने से, उसमें लिखा है लॉटरी ऑफिसर का नंबर, ऑल दैट परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्टेड. ये कोड आपको बताना है, दिस इज योर रेफरेंस कोड, दिस. तो मैंने कहा चले काम करते हैं, टाइम पास करते हैं, लेट्स गो डीप इन दिस. तो हमने उस नंबर पे व्हाट्सएप किया, वो कोड उसको बताया, तो उसने फिर सामने से बोला कि ठीक है आप इस नंबर, मतलब 5-6 नंबर्स विद इन पूरा जाल फैला हुआ है. वी फाइनली स्टार्टेड चैटिंग विद दिस वन गाय. तो वो हमको बोल रहा है कि इससे आपकी लॉटरी तो लग गई है 25 लाख रुपए की, बट नाउ दिस इज 25,000 रुपए का बैंक चार्जेस. तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो सैलरी नहीं है मेरी इतनी, मैं पैसे कहाँ से दूँ. बोलता अभी कितने आपके पास? मैंने कहा मेरे अकाउंट में तो 2,200 रुपए पड़े हैं. तो बोलते हैं कोई बात नहीं, 2,000 में आपके लिए एडजस्ट कर देंगे. मैंने 92% डिस्काउंट. मैंने कहा ठीक है चलो. तो उसने बोला, उसने फिर एक नंबर दिया कि इस नंबर पे आप UPI कर दो. दैट नंबर वाज अ रैंडम नंबर. लोगों को पता नहीं होता उनके नाम पे अकाउंट्स बन रहे हैं जिसपे पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं ना, तो स्मॉल टिकट साइज की 2 लाख तक का पेमेंट वहां पे लेंगे इन ऑल. तो उस नंबर पे UPI आया, वी जनरेटेड अ फेक स्क्रीनशॉट और हमने बोला कि देखो हमने पैसे तुमको भेज दिए. अच्छा आप भी खेल रहे थे? मैं भी खेल रहा था. लुक एट द लेवल, मतलब स्कैमर को स्कैम कि हम लोग ने फेक स्क्रीनशॉट भी बना लिया, मतलब ये सब कुछ है. हमने वो फेक स्क्रीनशॉट बनाया 2,000 का और हमने कहा कि पैसे भेज दिए, और मैं उसके सामने एकदम गरीब बन गया बिल्कुल, मतलब कि भैया मेरे तो आपने पैसे ले लिया, मेरे को लॉटरी चाहिए ये वो. अच्छा उसको तो मिले नहीं है पैसे,
वो डेफिनेटली कहीं कहीं से चेक कर रहा होगा, तो बोलता है कि पैसे आए नहीं है। मैंने कहा भैया भेज तो दिए सारे पैसे आपको मैंने, ये क्या, मैं पूरा रोने लग गया, कुछ दिखाया मैंने आपको। उसके बाद में फाइनली व्हेन आई गॉट दिस कॉन्फिडेंस, और मैं उसकी आवाज से पहचान पा रहा था कि ही इज समवन फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज आई लिव इन दुबई, तो आई नो हाउ अ पाकिस्तानी वुड साउंड। तो मैंने उसको बोला बाद में, मैंने कहा यार क्यों कर रहा है ये सब। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे भी ये काम करना है, तो मुझे सिखा कि कैसे होता है दिस दैट ऑल। तो उसने फिर बताया, एंड मैंने पूछा कि अच्छा अगर मैं तेरे को पैसे देता तो तू क्या कर देता? तो मैंने कहा तू ब्लॉक करता। बोलता नहीं भाईजान ब्लॉक क्यों करेंगे, आपसे तो अभी और आपने दे दिए ना। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि अभी आपके 2000 तो आ गए हैं। अच्छा इन द मीन टाइम व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट्सएप पे मुझे वीडियोस मिल रहे थे, रैंडम वीडियो है एक बैंक का जहां पे पैसे हैं और वो बोल रहे हैं देखो आपके पैसे गिन रहे हैं, तैयार हो गए, आपके पैसे का वेट है। तो काइंड ऑफ प्लेइंग विद द माइंड्स कि मेरी लॉटरी तो मेरे सामने है। अच्छा एंड मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स, रैंडम पीपल फ्रॉम इंडिया जो बोल रहे हैं, गांव में कहीं बैठे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी केबीसी की लॉटरी लगी और देखो हमारे पास पैसे आ गए। मल्टीपल टेस्टिमोनियल वीडियोस वो मेरे को भेज रहा है जस्ट टू यू नो विन माय कॉन्फिडेंस। तो उसने बताया कि अ गर्ल उससे वो 12-15 लाख रुपए ले चुका है एंड शी इज गिविंग मोर no for bigger hopes for 2 crore की लॉटरी या whatever. Throwing good money after bad is a human psychology problem. हम लोग अगर जो भी हमारे ये आइडियाज हैं, just imagine such a low investment business with such SIM cards, with such high returns. एक ऑफिस खोल के और वो सिम कार्ड इंडिया में तो कॉलिंग भी फ्री है। और सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा हो रहा है, या तो किसी को कॉल आएगा या फिर SMS आएगा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ YouTube की वीडियोस लाइक करना है और एक वीडियो लाइक करने का आपको 150 रुपये। और मेरी टीम की और पहले 2-3 बार पेमेंट होती है। फास्ट फॉरवर्ड ये चीज ये जो हो रहा है ना, मेरी टीम के 2-3 लोग हैं ऐसे। इसमें अगर स्कैमर को स्कैम करना है, पहले 3 वीडियो देख लो, फिर चौथे के बाद जो पैसे मिल जाए, एंड डू नॉट वॉच द फोन। नाउ मेनी ऑफ द पीपल आई नो दे आर सो प्रो नाउ कि वो जब भी ऐसा मैसेज आएगा वो पहले 200 रुपए तो ले लेंगे। बोलते हैं कि they know कि this is the limit. You know what's funny also, because we're laughing, we all have gone through the same kind of Yeah, scams and 100%. scams. So it's also something that everyone has gone through the same story, and still people are falling for it. Nobody's discussing it also. यहाँ की पॉपुलेशन देखो, एक बहुत छोटा सा सिनॉप्सिस देता हूँ. All of you know about what is happening out here, and then I want to know कि what do you think of this technology? आप कैसे ये गेम चेंजर है, and what do you think it will do for the country? तो basically using 2 levels of filters with AI. आप देखिए कोई भी जो स्पैमर है, स्कैमर है, वो क्या कर रहा है? उसका एक बिहेवियर पैटर्न है, राइट? हमने कहा वो 1000 कॉल्स अ डे करेगा, राइट? ये वॉल्यूम गेम है. वो बार बार फोन जो है 3 या 4 घंटे बाद बंद कर देगा, कोई और करेगा. वो सिम कार्ड जो है दूसरे फोन में डालेगा, यहाँ उसी IMEI में नया वाला सिम कार्ड डालेगा. वो बहुत कॉल करेगा, 99% ऑफ द कॉल्स गेट कट इन बिटवीन. ये सिर्फ 2 या 3 बिहेवियर पैटर्न्स हैं. AI के साथ एयरटेल ने जो सोल्यूशन निकाला है, वन इज एट नेटवर्क लेवल, वन इज एट द IT लेवल, द डेटा लेवल, राइट? 250, मैंने सिर्फ 2-3 बिहेवियर पैटर्न बताए. वो 250 ऐसे पैटर्न्स जो है इन रियल टाइम, in milliseconds, it is actually looking at the behavior pattern of that number, that area, that SMS. वो URL कहाँ जाता है, वो URL में अगर आप क्लिक करोगे तो वो क्या खोल रहा है. It is analyzing it in milliseconds in real time. Billions of calls a day, billions of SMSs a day. और जब आपके पास वो कॉल रिंग करेगी, ये एनालाइज हो चुका है ऑलरेडी. It will say suspected spam. इमेजिन अ पर्सन जिसको आप बोल रहे हो सस्पेक्टेड स्पैम है, आपका क्या चांस है ऑफ यू टेकिंग द कॉल? आपके SMS पे अगर लिखा हुआ है लिसन यू आर गोइंग टू गेट स्कैम्ड इफ यू क्लिक ऑन इट. If you click on it after that, you deserve to get scammed. So I'm going to start off again with you, Rohan. इस टेक्नोलॉजी के बारे ये क्या इस देश के लिए करेगा, and how do you see it play out? I think एक तो like you said, right, the vulnerable groups are senior citizens. So the main thing is that we start off with, once you see that suspected spam, is peace of mind. Bilkul. Right? Today, like all of us, we have parents, grandparents, etc. But we want them to know that they have peace of mind. Like, you know, your parents, they're sitting in Bangalore. I'm sure you'll have a little more peace of mind knowing that they're seeing this suspected spam. And once you know it's saying suspected spam, suspected scam, you can now answer the phone with little confidence and do what sir here did. It's like, अभी deep dive करते हैं कि ये scam कैसे हो रहा है. अब मैं कह रहा हूँ कि ये scam है. Senior citizen है, after मेरे पास 1 घंटा है, kill. Exactly. Let's मेरा lunch break call, man.
no, Let's do this. Like, I think this is a threat to streaming services. Pure entertainment. Spending an hour. बिल्कुल, Right? बिल्कुल, But peace of mind. I think, like, to put it in this thing, I think that there's a peace of mind element that comes with somebody flagging something as before you click a thing, ये spam है. एक और चीज that I wanted to point out why मेरा confidence in this technology is very high is that यहाँ पे Airtel is not saying this is a paid subscription. Billions of calls, billions of SMSs, the hardware, the software, the engineering, the people behind it, the R&D. This is costing them a bomb. But they are doing it to make sure that this is a pain point that needs to be solved. I have a question. So will this just flag the spammers? What about those marketing calls, right? Real estate se phone kare, insurance se phone kare. Will that also come in as a possible So there spam? are इसके ना दो categories हैं. Those जिन्होंने legitimately registered telemarketing numbers लिए हैं, right? They will be identified as that. They will not be called. They are not a spam call. You can put them on DND तो उनकी कॉल कभी आएगी नहीं, right? That's the one that they can flag. ये दूसरे numbers हैं जैसे गौरव ने बोला कि जो लोगों के through illegal means they go and get 10,000 SIM cards together. वो एक normal number जैसे आपका private number है, मेरा private number है, ये सब private numbers हैं. और almost all spam comes from these private numbers. उसका कोई solution नहीं था. Today that solution has been found. So that's the big difference. I want to just find out from you now. Same question that I had for Rohan. What do you see this technology when you heard about it? Sigh of relief? Big sigh of relief, and I'll tell you why. Because I do have a third-party app on my phone that tells me about potential spammers, but I am so reluctant to use it at most times because मैंने crowdsourcing है ना? क्योंकि उनको मेरा ईमेल चाहिए, उनको मेरा फोन नंबर चाहिए, फोन बुक चाहिए, एक्सेस कॉन्टैक्ट से एक्सेस चाहिए, तो मेरा डेटा तो उनके पास है ही. अब मुझे पता नहीं वो मेरा डेटा आगे कैसे यूज कर रहे हैं. सो मैंने फिर वो डिलीट कर लिया. मैं वर्ड टू वर्ड बता सकता हूं आपका डेटा क्या यूज कर रहे हैं. तो वहां मैंने वो ऐप डिलीट कर लिया. फिर आई डिडंट हैव एनी अदर फैसिलिटी. नाउ दैट दिस हैज कम, आई डोंट नीड टू डाउनलोड अनदर ऐप. दिस इज अ फैसिलिटी दैट इज देयर विद माय एयरटेल नंबर, एंड लाइक यू सेड पे नहीं करना पड़ता. तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है और मेरा डेटा जितना एयरटेल के पास है, एयरटेल के पास एटलीस्ट कहीं जा नहीं रहा. सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी अबाउट दैट. Okay. More than just pay, there's nothing you have to do at your end. It's Exactly. baked into the network I on a don't need to do fundamental anything. level. They're telling me. This is a lie back and let it happen kind of a thing. Exactly. What about you? क्या आपकी क्या feeling? First emotion क्या था आपका? तो मुझे ना हमेशा मेरे पिताजी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलते थे कि जो ताला होता है वो एक शरीफ आदमी के लिए है. यहाँ मत जाओ, ताला लगा हुआ है. ताला चोर के लिए अपॉर्चुनिटी है. जितना बड़ा ताला और बढ़ता है. तो मेरे ख्याल से जब कहते हैं ना कि गुड पीपल और बैड पीपल की बात, इस समय वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन वेयर सर्टेन गुड पीपल आर इन्वेस्टिंग गुड मनी टू सेव अस. क्योंकि चोरी जो है इट्स अ कैट एंड माउस गेम. हमेशा से पीपल दे विल बी स्मार्टर वेज. वो भी जब इतना इन्वेस्टमेंट है वो भी अपना AI लगाएंगे. बट एटलीस्ट व्हाट आई एम हैप्पी इज दैट अब सिर्फ क्राउड सोर्सिंग तक ही हम सीमित नहीं हैं. बिल्कुल. ये आइडेंटिफाई करने के लिए. एंड देयरफॉर I think it's a welcome step. Because just imagine, we have taken the game to another level. Because now what it is doing is that this machine is continuously learning the intelligence. जैसे आप बता रहे थे कि आप फोन चेंज करते हैं, सिम चेंज करते हैं, इट इज रीडिंग दैट. ऐसा नहीं कि जिसने भी फोन चेंज किया उसका ब्लॉक आ गया. नहीं, वो सिर्फ जब आपको 1000 कॉल्स करेगा ना गौरव तो हम उसको फ्लैग करेंगे. है ना? जैसे मैं अपने आप को हमेशा कहता हूँ आई एम द विंटेज ऑफ 65 and the vantage of 24. And this is what is happening. क्योंकि देखिए मैं उस वक्त का हूँ जब हमको बुक करना पड़ता था फोन. अब हम लोगों को फोन मतलब लेटेस्ट फोन हम लेते हैं वगैरह. जस्ट इमेजिन, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं और सतर्क हो जाऊँ और टेंस हो जाऊँ. आई कैन लिव फ्रीली. जैसे हम कहते हैं ना हम लोग चैन से सोना चाहते हैं. आई रियली थिंक इसके बाद हम लोग चैन से दिन बिता पाएंगे यार. हम ये नहीं करेंगे तुमने फोन तो नहीं लिया ना, तुमने फोन तो नहीं लिया ना. क्योंकि so I think somebody is investing in our peace of mind, what you talked about, which is a huge thing. Absolutely. So that we can do good thing in our work, so that we are being taken care of by technology. And it's not just yourself. Yeah. Fear for all other your near loved and dear. ones. Exactly. ये बहुत बड़ी बात है. And that's the one which I love. It's available to all. Yep. And I love can you that. imagine now you don't have to tell them. It says. The network is telling them. It's a very big deal. एयरटेल हमें वो अपॉर्चुनिटी देगा कि इन सारे सस्पेक्ट
सस्पेक्टेड स्पैम को हम D&D डालेंगे? मैंने ये सवाल पूछा था, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये आना ही बंद हो जाए. I don't even want to get the suspected spam Yes, वाला yes. notification. And they said कि हम लोग ने शुरू किया है, we are at 97-99%. AI and ML, machine learning, artificial intelligence, only gets better. I feel, again, the people who are normally targeted by these scams, a lot of our banking work happens in English. और हमारे देश में से बहुत लोग हैं जो इंग्लिश में फुल कंफर्टेबल नहीं होते, इंटिमिडेशन होता है उनको. So if that recording comes in multiple in the language that they are most comfortable with. in Tamil, in Kannada, in Gujarati, in Hindi, whatever language they're comfortable with, and it says कि ये शायद स्पैम कॉल मत उठाओ. मतलब रियली क्लिक भी किया. जैसे कि हम लोग को इंटरनेट पे कभी-कभी मिलता है कि this is a flag website. Do you still want to? Then it's You up should to you. also get certain famous voices to record it. Like you should have Rohit Sharma saying, "मत उठा, ये वो है." ये वो है ये वो है जो ये है. And Virat says it with a lot of passion. With a lot of passion. उठाना मत उठा. They should do that. I want to know from you. जब आपने इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना, were you shocked? Because ये actually बहुत high level of technology use हो रही है. बहुत आसान है यहाँ पे बैठ के बात करना, कॉफी के ऊपर हम लोग जो है एक चर्चा कर रहे हैं, but this is a very high level of tech. What did you feel? दो फीलिंग्स है. सबसे पहली बात तो ये कि हम जो देख रहे थे कि इंडिया में इतने स्कैम्स क्यों होते हैं. The biggest reason is कि today it's become so easy for people to do transactions with just their smartphones. Imagine कि पहले के टाइम पे जब आप पैसे भेज नहीं सकते थे तो वो स्कैमर को आपके सामने आना पड़ेगा बस स्टैंड पे आपसे स्कैम करने के लिए. आपके घर बैठे कोई स्कैम चांसेस कम थे. बट टुडे बिकॉज इंडिया इज सच अ स्मार्टफोन फर्स्ट कंट्री, ऑलमोस्ट हर एक इंसान के पास स्मार्टफोन है, हर एक इंसान के पास फोन में UPI एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल, तो स्कैम होने का पोटेंशियल बढ़ जाता है. एंड दैट्स द रीजन कि लो इन्वेस्टमेंट गुड रिटर्न्स चल रहा है. एयरटेल ने जब इसको अनाउंस किया ना, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, क्योंकि वेरी सोफिस्टिकेटेड, अगेन फ्लैगिंग ओनली द वंस नीड टू बी फ्लैग्ड. नॉर्मल कॉल्स को फ्लैग हम नहीं कर रहे हैं. एंड डूइंग ऑल दैट प्रोसेसिंग इन जस्ट 2 milliseconds. And not just for my number, for all the subscribers, not a service जहां पे मैं कुछ enable या disable कर रहा हूँ. It's on by default. मतलब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है. जब भी ये रोल आउट होता है कल से आपका फोन by default is well equipped with all this. लगता है it's such a sense of relief. Because what I feel is कि आज आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए शायद बच पाना बहुत easy हो गया है. हम शायद समझदार हैं, हम शायद इतने स्कैम्स डिस्कस कर चुके हैं, तो हम शायद अवेयर हैं कि वो क्या-क्या तरीके से स्कैम याद रखना जो स्कैमर ने कहा था. Yes. कि जो सोचते हैं कि हम लोग बिल्कुल वल्नरेबल नहीं है, मैं उसके ऊपर अभी आने वाला हूँ इसके बाद. बिकॉज तो दिस इज एटलीस्ट फॉर द मासेस. इमेजिन समवन जिसने अपना पहला फोन लिया है, फर्स्ट फोन ऑफ समवन्स लाइफ, जिसको कुछ नहीं पता कि स्कैम्स क्या एग्जिस्ट करते हैं, और उसके साथ अगर 20 रुपए पे जाते हैं ना, तो देयर इज अ पेन. मतलब एवरीवन इज अ विक्टिम. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बिकॉज इट्स ऑन बाय डिफॉल्ट, इट्स सच अ रिलीफ कि ओके हम बचे हुए हैं. सेकेंड थिंग अबाउट बीइंग ओवर स्मार्ट, आई विल टेल यू एंड आई विल टेल दिस टू ऑल द व्यूअर्स कि कभी भी ये रिस्क मत लेना कि वो सस्पेक्टेड स्पैम लिखा हुआ आ रहा है एंड स्टिल अगेन यू ट्राई, बिकॉज यू नेवर नो वो कब स्विच फ्लिप होगा and your emotions will come in और फिर आप गलती कर दोगे. इन्होंने जो बोला कैट एंड माउस गेम है. Yeah. ये अगर $multi-billion एक इंडस्ट्री है स्कैमिंग की, तो दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू सिट बिहाइंड से अच्छा आज तो हमारा काम खत्म, अब नाउ अब काम से कुछ और बिजनेस करते हैं. मुझे एक इसमें इस पूरे एक तरह से एक मुहिम की शुरुआत है. Why I find interesting is जैसे आपने भी कहा, this is the beginning, this is the first step. So imagine, what I love is that a journey has begun, a journey of protection. So whatever questions that you and I have, you know, that how else can we be protected? I think a set of people, technology is already consistently going to be working on that. So it's a developing story, and I like this developing story. We also have a lot of people in our lives, right? People who work in our homes, जो खाना बनाते हैं, ड्राइवर, जिनके हाथ पे अभी भी नया मोबाइल आया है, जिनका अभी बैंक अकाउंट है, जिनका आधार कार्ड है, जनधन योजना, everybody is using UPI. They are unaware of all the. It would be really useful if all of us who have this information then show them कि अगर आपके फोन में ये आया तो मत उठाना. इनके इन फोन कॉल्स पे आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो, उठाओ ही मत. This is what it means. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है कि they said on stage कि हम लोग ने जो है अब जो है स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है. First the problem was that we did not even have a right base. Once they built this platform, now building further on it बहुत आसान हो जाता है. ये एक बहुत छोटा सा ट्वीक है, which is
ऑडियो, ये बहुत छोटा सा ट्वीक है। अदर लैंग्वेजेस, ये बहुत छोटा सा ट्वीक है कि एसएमएस जो है जब वो सस्पेक्टेड होगा तो वो रेड कलर में आएगा। ये सब चीजें जो हैं, these are only minor tweaks. The main work has been done, identification. The other thing that is actually very encouraging to take off from your point about what they said is also that they kind of approaching this with openness. Correct. Which is that, you know, they're willing to work with other telcos, they're willing to work with, so that it's not just, yeah, exactly, right? It's a good start, and eventually would love to see other follow. नहीं बिल्कुल, उन्होंने That बोला कि becomes a norm then. CIO has written to all the other networks, Yes. lot of industries, banks, insurance companies. तो जो real legitimate business है, they will partner with them because they want the business. They want to be seen कि हम लोग legitimate हैं, we're doing good work. On that note, I want to take it forward कि हम लोग ने दो बहुत important subjects को किया. The big pain point that destroyed communication in the country, the big innovation जो शायद वापस लाएगा, that we will, the pleasure of having a phone will come back. Yes, उठाते हैं phone लेते हैं। लेकिन the more interesting thing is कि काफी weird scams and spams भी आते हैं. I want to know, starting from maybe again from you, because when I think you are. You're role number one. I'm role number one. I'm role number one at this table. Now you know with so many different kind of emotion जो आप Instagram पे आप express करते हो. Yeah. तो you're obviously candidate number one for some weird scams. 100%. बताओ मेरे को सबसे ज़्यादा 100%. But no, there's lots of weird calls, right? And like you said, sometimes it's dangerous to be smart, but sometimes it can also be very funny. Like I got a call a couple of months ago where a guy was like, मैं दिल्ली पुलिस स्टेशन से फोन कर रहा हूँ, ठीक है? एक तो like, वाह, दिल्ली पुलिस स्टेशन, दिल्ली में एक ही पुलिस स्टेशन है, दिल्ली. Like, can you imagine if in Mumbai you were like Mumbai पुलिस स्टेशन? Like आपके आधार कार्ड पे एक पैकेज भेजा है किसी ने कैम्बोडिया और उसमें ड्रग्स मिले, ठीक है? तो मैंने बोला एक तो यार मैं ऐसे नॉर्मल पोस्ट में थोड़ी ना भेजता, तो आई स्टार्ट एंजॉय विद हिम. तो आई एम लाइक नहीं कितने भेजे, तो इज लाइक 4 किलो पकड़े गए. आई एम लाइक आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने 6 किलो भेजे थे. मेरे पहले आप 2 किलो वापस भेजिए, उसके बाद मैं पैसे देता हूँ आपको, ठीक है? एंड अगेन लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट इट, आई जस्ट केप्ट हिम ऑन द फोन एंड इवेंचुअली वो बस इरिटेट होके उसने खुद डिस्कनेक्ट कर दिया. But again think about कि जो उन्होंने बोला The creativity, right? Creativity Like, yeah. and fear. Yeah, what about you? Weirdest? मेरे साथ नहीं हुआ बट आई हैव रेड. एक लड़की है, उसको सेम टाइप ऑफ कॉल आता है कि भोपाल की लड़की थी वो, कि आपका पैकेज है उसमें ड्रग्स मिला है. तो वो डर जाती है. फिर दूसरा कॉल आता है कि हम पुलिस से बात कर रहे हैं, आप अपना कैमरा ऑन करो. वो कैमरा ऑन करती है, राइट? तो वो बंदी 4 दिन तक उस लैपटॉप के सामने बैठी हुई है. ये हाउस अरेस्ट का केस है और ये एक नहीं मल्टीपल हुए थे, बट ये लड़की वाला ज्यादा हाईलाइट हुआ था. तो उसने सोचा कि वो हिलेगी तो घर पे आ जाएंगे, अरेस्ट कर लेंगे. मेरा बहुत weird story. और being in the content creation bit of it, DMs तो बहुत आते हैं, so now I don't engage at all because it's related to links and it's phishing. But I told Rohan this story. My dog had passed, and then 2 years after his passing, I got a call saying कि आपका dog unfortunately गाड़ी के नीचे आ गया है. We have got his body to this morgue. Please send us some money and we'll send him in the ambulance. Firstly, I was really sad because I knew this was not my dog, but then I thought किसी और का dog है. So I said, sir, मेरा dog नहीं है, आप बता दो मेरे कॉलोनी से कोई होगा. And he knew where I lived, but not my full address. He knew my locality. So he said, आप XYZ में रहते हैं ना, यहाँ का ये doggy है. And I said, नहीं है. Then he called again. मैम ये आपका डॉगी आपका नेबर का है, बट प्लीज सेंड द मनी, तो हम आपके डॉग को आपको भेज सकते हैं. This was a very weird conversation, and the third time he called me, I was like, ये तो scam. Weirdest. But it has to be super weird. मतलब very weird. Not like personal experience, but a very close one. So basically, someone met someone on a dating website, or dating app, or whatever. ठीक है? और this guy happens to live in Australia, and the girl is here and she is chatting. वो आराम से बात कर रही है. It's been like 1 महीना 2 महीना. And then eventually this guy is telling कि okay, I'm coming to Delhi 2 महीने बाद, and we'll finally meet and this that. Like everything plan is set कि okay, you come and we'll meet. But this guy apparently is sending photos कि मैंने तुम्हारे लिए ये बैग खरीदा है, ये सामान लिया है, वर्थ इतने लाख, ये वो करके उसने पूरा उसको फोटो भेजा है. सुना. Then 2 महीने बाद जब टाइम आता है मिलने का, now this guy just calls from a random number कि यार I am at the airport and the customs they have stopped me. तो इसके लिए they are asking for 50,000 या whatever amount कि transfer कर दो. 2 questions हैं. Number 1 कि अब स्पैमर्स का अगर दुकान बंद हो रही है, what is the alternate career you will suggest to them? और दूसरा, we're going to go this way, right? Okay. क्या उनको करना चाहिए, right? And the second thing is,
If this is the starting building block, what do you see will happen? अगर 1 साल बाद हम लोग फिर यहाँ पे बैठे, what do you think will be the state of this country and your phone communication? One sentence each. नंबर 1 तो ये है कि कुछ पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो, कुछ थोड़ी तैयारी करो, काम करो, मेहनत करो। तो सीधा यहाँ से कोई बीच की मतलब जितना टाइम यहाँ लगा रहे हो उतना टाइम एटलीस्ट वहाँ लगाओ। एंड मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। 1 साल बाद आई थिंक हम जब दोबारा ऐसा अगर कभी डिस्कस करेंगे तो शायद हमारे पास में ज्यादा किस्से नहीं होंगे इतने, हम शायद थोड़ा सुकून की हिस्ट्री में बोलेंगे। याद है एक टाइम में कॉल आया था मुझे। यस Excellent. ये होने वाला है। I think they should join our cyber cell. ये सबका ऑल्टरनेट करियर एडवाइस यही है कि आ जाओ। And because of this Airtel movement, मुझे लगता है इंडिया जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। वाह, मतलब एक ऑल्टरनेट करियर में हम लोग आईएएस में डाल दिया, इकोनॉमी में सीधा वहीं पे पहुंचा। You get the last word. I get the last word. One is with them film industry में आना चाहिए। ये पक्का है। क्रिएटिविटी मतलब नेक्स्ट लेवल पे स्क्रीन राइटर बन जाओ, लाइक इंडिया नीड्स इट, ठीक है। 400 करोड़ की पिक्चर बनेगी, you won't need to scam anyone. बिल्कुल, ठीक है। okay. In terms of where we'll be from a year, I think I'm with you and sir, which is that they'll also get more creative. We'll also be talking about weirder stories, but hopefully fewer stories. Yeah. I think that's the main this thing, and I hope it says suspicious spam, but also occasionally want to see irritating mat uthao. I think काफी categories हैं। Some very interesting ones also, like you. Pakao number 3 mat uthao. They definitely have like hugely, kind of an advantage, I would say, compared to those scammers in terms of AI, in terms of technology, in terms of जिस तरीके से they are able to filter out 250 different parameters। हम तो 2-3 की बात ही कर रहे थे। मुझे लगता है कि developments होंगे, but can't be on the same level as what Airtel would be doing। तो मुझे लगता है कि 1 साल बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे it's just the start। वो लाल रंग से मैसेज आना हो या वॉइस, रीजनल लैंग्वेज, ऑल दैट वो होने वाला है। उधर से मे बी दे विल ट्राई डूइंग समथिंग बिकॉज़ दे आर वर्किंग क्लस्टर्स, दे आर नॉट यूनाइटेड इन दिस केस। मुझे लगता है कि यहाँ पे वी आर इन अ बेटर पोजीशन, और 1 साल बाद आई थिंक पैसे काफी बचने वाले लोगों के, तो 5 ट्रिलियन शायद हो जाए। नहीं, आई थिंक आई एब्सोल्युटली एग्री। ये जो लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट है, ये जो लेवल ऑफ इनोवेशन है, एआई जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आप सोर्स पे ही कट ऑफ कर देते हो किसी को, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइज फ्रॉम अबव दैट। सो एयरटेल वेरी वेरी वेल डन। ये बहुत अच्छा स्टार्ट है। इट्स नॉट अ स्मॉल स्टार्ट, इट्स अ ह्यूज स्टार्ट। अपना फोन बिना डरे आप उठा पाएंगे। एक SMS आएगा तो आपको पता होगा कि दैट इज गुड फॉर यू एंड नॉट समथिंग बैड। इट इज रियल इंफॉर्मेशन, रियल नॉलेज you are getting. And on that note, thank you so much for joining us. This has been a wonderful conversation. Thank you.